Hello students, welcome back to my new video which is about information technology for class 9. Before going towards the class, let's discuss agenda for today. We are going to discuss application of information technology in the field of science and engineering. Then we will talk about application of information technology in insurance and marketing sector. After discussing these two, we will go forward with information technology in banking sector, then we will go for healthcare sector, and finally we will discuss the most important factors of IT in government and public services. So let's start the class with application of IT in engineering and science. As you know, computer is the invention of science. From science, computer has been derived, and nowadays, this computer is helping many scientists and engineers for performing complex scientific calculations like computer aided designing or computer aided मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा दोस्तों, अच्छा स्टूडेंट्स, मैं अभी तुमको कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में थोड़ा कुछ बोलूँगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए तुम मशीन का डिज़ाइन बना सकते हो या फिर चाहो तो कोई घर का डिज़ाइन बना सकते हो। एक छोटे से हार्डवेयर का भी डिज़ाइन तुम बना सकते हो। और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, इसके ज़रिए तुम मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम तुम डिज़ाइन कर सकते हो। ये सब सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए हम साइंस और इंजीनियरिंग में बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। उसी तरह से स्टूडेंट्स, computers are also used for storing large amount of data, performing complex calculations। अच्छा, complex calculations मतलब जैसे कि रॉकेट को उड़ाने के लिए हमें बहुत सारे बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, जिसको अगर हम इंसान खुद करें तो 10 दिन 12 दिन लग जाता है। उन सब को जल्दी करने के लिए हम कंप्यूटर्स का सहारा ले सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के ज़रिए हम बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। जो चीज़ हम नहीं देख सकते हैं उसको हम कंप्यूटर के ज़रिए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को बना के उसको हम अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। आपने रॉकेट लॉन्चिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन इत्यादि सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा अभी तक पढ़ लिया होगा अपने स्कूल्स में। तो उन सब को अच्छे तरीके से करने के लिए हम कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब क्षेत्र में हमारा कंप्यूटर साइंस हमको बहुत चीज़ हेल्प करता है। इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको अभी एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो दिखा रहा हूँ, कृपया उसे ध्यान से देखें। Science is the pursuit of knowledge about the natural world through systematic observation and experiments. Science is really about the process, not the knowledge itself. It's a process that allows inconsistent humans to learn in consistent, objective ways. Technology is the application of scientifically gained knowledge for practical purpose, whether in our homes, businesses, or in industry. Today, we're going to discuss how that technological know-how gained through science allows us to expand our scientific knowledge even further. Let's look at how scientists use computers and technology. It's hard to imagine science without technology. Science is all about collecting data, or in other words, doing experiments. To do an experiment, you need equipment, and even the most basic equipment is technology. Everything from the wheel to a Bunsen burner to a mirror is technology. So all experiments use technology. But as technology advances, we are able to do experiments that would have been impossible in the past. We can use spectroscopes, for spectrometers, to shine light through material and see what elements it's made of. We can use gigantic telescopes to see into the far reaches of our universe. We can use MRI scanners to study the inside of the human body and even the brain itself. We can use a microscope to see the very tiny, and we can use electronic devices to take measurements that are far more precise than anything that came before us. Technology is at the heart of all modern science experiments. And then came computers. Computers have revolutionized science more than any other device. With computers, we can take huge amounts of data and analyze them using statistics.
The kind of pen and paper calculations that would have taken months can now be done in mere minutes. Those same computers can be used to build electronic models. Wondering what will happen if a giant asteroid flies within 50 miles of the Earth? Will this affect it gravitationally? Will it get pulled into the planet and hit us? Well, now we have the laws of gravity and computers that can help us answer these questions. We can enter data, run the simulation, and see what happens right away. We can also use computers to simulate air flowing across the wing of a new plane, the results of explosions and nuclear meltdowns, and even the formation of the universe. The more powerful computers get, the more we can simulate and the more we can learn. There are also special electronic probes and sensors, known as probeware, that allow us to send our data straight into computers equipped with special software. Using this technology, we can instantly and effortlessly interpret and analyze data in ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंजीनियर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बाद हम आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंकिंग सेक्टर में कैसे यूज होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसे कि तुम्हें पता है, बैंक्स में हम ज़्यादातर टाइम क्या कर सकते हैं, जैसे कि पैसा डिपॉजिट करना हो या पैसा विथड्रॉ करना हो या पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को ट्रांसफ़र करना हो, हम ये सब भी करते हैं। उसके अलावा हम चेक डिपॉजिट, डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिट, ये सब काम भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल के आधुनिक ज़माने में जहाँ कंप्यूटर हर क्षेत्र में यूज़ होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर को हम बैंकिंग में यूज़ करके घर बैठे बैठे ही ये सारा काम कर सकते हैं। आपको इस स्क्रीन में कुछ सॉफ्टवेयर्स का लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, भीम, पेटीएम, मोबीक्विक, अमेजोन पे, फ्रीचार्ज, व्हाट्सएप पे, ये सब हमारे यूपीआई पोर्टल्स हैं। यूपीआई पोर्टल मतलब यूनिक पेमेंट इंटरफेस। इसके जरिए आप घर बैठे ही अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को पैसा भेज सकते हैं, उसी तरीके से उनसे पैसा ले भी सकते हैं। अगर आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो इन सब के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर्स में फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स, एनईएफटी, आरटीजीएस इत्यादि सब चीज़ ऑनलाइन तरीके से आजकल हो रहे हैं। कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड ये सब रिलेटेड सर्विसेज भी आजकल ऑनलाइन पोर्टल्स में हो सकते हैं। आप लोगों ने अगर अभी बैंक गए होंगे तो देखे होंगे आजकल कुछ बड़ी बड़ी मशीनें रखी गई होती हैं जिनके जरिए हम पैसा भी डिपॉजिट कर सकते हैं। उन मशीन्स को हम कियोस्क मशीन बोलते हैं। कियोस्क एक कंपनी का नाम है जो ये सब मशीन बनाता है। हमारा जो बैंक का पासबुक्स भी होते हैं, आजकल इन कियोस्क मशीन के जरिए हम अच्छी तरीके से पासबुक का भी अपडेट कर सकते हैं। आप लोगों ने तो भली भांति एटीएम मशीन्स को देखा होगा। एटीएम मशीन वो मशीन होता है जिसके जरिए आप कैश डिपॉजिट्स एज वेल एज कैश विथड्रॉयल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकिंग सेक्टर्स में होता है। इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, कृपया इसको आप देखिए। If there are billions of conversations happening every minute, imagine how many times your bank must have been talked about while you finish watching this video. Each conversation is a business moment for you to create a memorable experience for your customers that they would want to share with others. Envision the world's future. From smartphone to a smarter phone. From a car with a driver to a car without a driver. Future is the next present, where our imagination today has become Lisa's fully automated banking experience in 2020. While Lisa is sleeping, her phone receives a notification regarding the shipment, which is ready with the exporter. The intelligent software checks for funds and notifies her bank that she would need a letter of credit. Understanding an urgent change in schedule, her phone automatically resets the alarm for 7 a.m. so that she can plan her day. By the time Lisa is ready to go, her smartwatch receives a notification that her black vehicle is low on fuel and suggests that she drives the red car. The GPS selects the shortest route and Lisa arrives the New Age Bank's intelligent branch sharp at 9.
From the moment Lisa arrives at the bank's special branch with no staff at all, the door installed with intelligent communicator scans Lisa to notify the bank about her arrival. Bank's interactive walls talk to Lisa to tell her about how she can transact better with bank's offers or corporate credit. Meanwhile, her smartwatch directs her to a special kiosk where the bank welcomes Lisa, automatically logs her in, and connects her to an expert, who is a client of the bank too, to guide her about the needs for the letter of credit. Within minutes, her letter of credit is approved, the exporter receives the payment, Lisa's shipment is released, and the time is just 9:15 a.m. Rewinding to today, can you imagine the intelligent banking experience on a vacation? While Ted is enjoying his vacation, a bike, Harley, passes by, catching his attention. The bike has been Ted's dream since school. Ted takes a picture and uploads it on his social media account. Instantly, bank's intelligent software picks up Ted's interest in this bike, analyzes his post on social media, his sentiment, his conversations about the product, and after analyzing his spending pattern, the bank offers a pre-approved bike loan along with information on the best dealers around, their discounts offered, and the color options available, all on the go. While Ted is still on vacation, bank's geotagging technology identifies Ted's location, instantly analyzes his credit card spending pattern, and offers him the best deals on bike accessories at a nearby store. And this is not all. Before the vacation ends, the bank delights Ted by offering him free airline miles and complimentary hotel stay to plan his next vacation. Imagine millions of customers like Ted for a bank like yours. The intelligent software enables you to continuously track millions of social media conversations to engage, interact, and offer a futuristic banking experience to your valuable customers. Place, time, or medium no longer matters. Engage your customers. Delight your customers. Nugent. चलिए मैं आपको एक छोटा सा अक्षय कुमार का एक ऐड दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, गाड़ी की ईएमआई क्यों? टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया तुमने? भूल गया। हमें policybazaar.com पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ ₹680 महीने में मिल रहा है। वो भी नहीं ले पाया तू। तुम जैसे लोग हैं जो अपने परिवार का ध्यान नहीं रखते। अब भुगतो। चलो खड़े हो। चलो। भैया टाइम रहते टर्म इंश्योरेंस करवा लो policybazaar.com पे। अस्पताल में चप्पल पहन के घूमेगा? चल policybazaar.com। चलिए मैं आपको एक छोटा सा अक्षय कुमार का एक ऐड दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप लोगों ने उस ऐड को देखा जिसमें अक्षय कुमार policybazaar.com एक वेबसाइट के बारे में कुछ बोल रहे हैं। तो जी हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग का एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है policybazaar.com। पहले टाइम में क्या होता था, इंश्योरेंस एजेंट आपके घर में आके आपको डिटेल समझाता था और आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। वो एजेंट आपको जो बोलता था उसी को ही आप सच मान के उसी से आप इंश्योरेंस कराते थे। पर अभी ज़माना बदल चुका है। आज के ज़माने में हम घर बैठे ही policybazaar.com जैसे वेबसाइट और ऐप के ज़रिए लाखों करोड़ों इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस देख सकते हैं और उनसे इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। देखने के अलावा हम ज़्यादातर कंपनियों का इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसका भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियां सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए, आईटी के ज़रिए अपने कस्टमर्स का डाटा स्टोर करते हैं, पॉलिसी का स्टार्टिंग डेट, डेट ऑफ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, मैच्योरिटी डेट, इंटरेस्ट ड्यूज क्या क्या हैं, क्या क्या सर्वाइवल बेनिफिट्स हैं, कैसा बोनस डिक्लेयर किया जा सकता है, ये सारा चीज़ आजकल कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ज़रिए किया जाता है। उसी तरह से आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा सुना होगा। जैसे कि जब भी आप फेसबुक करते हैं या व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं या इंस्टा पे अपना फ़ोटो पोस्ट करते हैं, तभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐड आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। मार्केटिंग पहले हम टीवी एड्स में देखते थे
या फिर बड़े बड़े होर्डिंग्स के जरिए हम बड़े बड़े रास्तों हाईवे में हम होर्डिंग्स लगाते थे। पर आजकल फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी डिजिटल मार्केटिंग के जरिए एक कंपनी अपना सारा इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को दे सकता है। ये सब चीज़ है अबाउट इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ आईटी इन इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग। नेक्स्ट दोस्तों स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर। ये सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है रिगार्डिंग हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं जो कंप्यूटर के हेल्प के द्वारा डायग्नोसिस में भी हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर, दैट इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये नीचे एक फोटो देख सकते हैं जिसमें एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का एक छोटा सा फोटो मैंने पेस्ट किया है। इसमें आप देख सकते हैं बीच में एक हॉस्पिटल है और चारों तरफ कुछ कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे कि स्टाफ, फार्मेसी, अकाउंट्स, इक्विपमेंट्स, पेशेंट्स, डॉक्टर्स। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक ही साथ ये सारा चीज़ को मैनेज कर सकता है। उस सॉफ्टवेयर के जरिए आप डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसका डिटेल्स आप एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू जान सकते हैं। हॉस्पिटल्स में क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या क्या स्कैनिंग होते हैं, क्या क्या पैथोलॉजिकल काम किया जाता है, सारा चीज़ आप देख सकते हैं और उसका लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। पैसा पेमेंट भी आप इसी सॉफ्टवेयर के जरिए कर सकते हैं। मेडिसिन भी लेना हो तो आप वहाँ पे भी अप्लाई करके घर बैठे बैठे मेडिसिन भी ले सकते हैं। और आपका अगर कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप स्टाफ को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली यही चीज़ है जिसमें आप एक ही सॉफ्टवेयर में हॉस्पिटल का सारा काम कर सकते हैं। हेल्थ केयर एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो डायग्नोस्टिक टूल्स बनाने के लिए और इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए। बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जिसके जरिए हम बहुत सारे डिजीजेस का क्योर कर सकते हैं और उनको डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम एक एक करके एक टूल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला टूल है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी मशीन, जिसको हम कैट मशीन भी बोलते हैं। मैंने एक छोटा सा पिक्चर यहाँ पे लगाया हुआ है, आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं ये मशीन किस तरह है। ये मशीन क्या करता है, 3 डायमेंशनल इमेजेस बनाता है अपने आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का, जिस इमेजेस के जरिए हम देख सकते हैं कि आपका कौन सा ऑर्गन सही तरीके से काम कर रहा है और कौन सा ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये बेसिकली हमारा कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत जगह पे यूज होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग मशीन और MRI। आप लोगों ने कभी भी अगर क्लिनिक गए होंगे तो इस डिवाइस का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ देखे होंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके बॉडी का डीप से डीप ऑर्गन्स का भी इमेज बहुत क्लैरिटी के साथ आपको दिखा सकता है, जिसके जरिए डॉक्टर ये पता कर सकता है कि आपका ऑर्गन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। ये मैग्नेटिक करंट के साथ साथ रेडियो एक्टिव वेव्स का भी यूज करता है, जिससे पिक्चर क्वालिटी कैट मशीन से और भी अच्छा आता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों ECG मशीन। ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन। ये आपके हार्ट बीट का ट्रैक करता है, उसी के साथ ही आपका हार्ट सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, आपका हार्ट अच्छी तरीके से ब्लड को बाहर और अंदर निकाल रहा है कि नहीं, और आपका हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सही तरीके से पहुंच रहे हैं कि नहीं, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन ये मशीन के जरिए डॉक्टर को मिल जाता है। नेक्स्ट 4th मशीन है कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन। ये आपके हार्ट रिलेटेड डिजीजेस को स्कैन करने के लिए ये मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आप एक स्क्रीन में देख रहे हैं
किस तरह से हार्ट का बीट्स ग्राफ के जरिए दिखाया जा रहा है। ये मशीन बेसिकली हार्ट में जो मूवमेंट्स होते हैं उसको अच्छी तरीके से दिखा सकता है। उसके बाद हमने हार्ट के बारे में दोनों मशीन्स देखा। अब हम एक मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे ब्रेन का एनालिसिस करता है, जिसे हम बोलते हैं ईईजी और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी मशीन। ये मशीन बेसिकली उन रिकॉर्ड्स का और उन एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन का ख्याल रखता है जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन के ब्रेन को अच्छे से देखने के लिए हम ईईजी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्रोब्स होते हैं जिसको हम ब्रेन के ऊपर लगा के उसका डिटेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आजकल आपने इस डिवाइस के बारे में सुना होगा, डायबिटिक्स का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें ब्लड शुगर का रेगुलर चेकअप चाहिए। पहले हमको ये चीज़ जाके क्लिनिक में जाके लाइन में लगा के बैठ के वहाँ पे ब्लड दे के उसके बाद शाम में रिपोर्ट लाना पड़ता था। लेकिन आजकल बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड हार्डवेयर इंडस्ट्री, आजकल ये मशीन आपको घर बैठे बैठे ही मिल सकता है। इस मशीन के जरिए आप घर बैठे बैठे ही अपना ब्लड शुगर टेस्टिंग कर सकते हैं और उसी टाइम ही आपका ब्लड शुगर का रिपोर्ट भी आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ यूज होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल्स। फाइनली आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, आजकल गवर्नमेंट सर्विसेज ई गवर्नेंस के जरिए भी हो रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस को डेली टू डेली बेसिस में यूज करता है। आप लोगों ने डिजिटल इंडिया के बारे में खूब सुना होगा। डिजिटल इंडिया एक कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए ई गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज को अच्छी तरीके से हमारे पास पहुंचाया जा सकता है। बहुत सारे गवर्नमेंट और एनजीओ एक साथ मिलके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत कुछ कर रहे हैं जिसको हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। आपके पास गवर्नमेंट का बहुत सारे वेब पोर्टल्स हैं जिसको आप यूज करके बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो जाए, सेल टैक्स डिपार्टमेंट हो जाए, वोटर लिस्ट हो जाए, पैन कार्ड्स हो जाए। ये सब चीज़ आप घर बैठे बैठे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहायता लेके गवर्नमेंट के सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन गवर्नमेंट के बहुत सारे सर्विसेज ऑनलाइन भी अवेलेबल हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या वाटर बिल हो, ये सब बिल जो पहले हमको वहाँ उनके ऑफिस में जाके लाइन में खड़े होके पेमेंट करना होता था, आजकल हम ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको ये भी पता होगा कि जब वोटिंग होते हैं तो हमको इलेक्ट्रॉनिक वोटर आई कार्ड की ज़रूरत होता है, जो पहले हमको पोर्टल वोटिंग करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, उनके पास जाके हमको वोटर आई कार्ड निकालना होता है। पर आजकल गवर्नमेंट के ई पोर्टल्स के जरिए हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग
इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का भी निकाल सकते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट पोर्टल्स। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट आगे ये प्लानिंग भी कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करे, जिससे हमारा वोटिंग और भी एक्यूरेट हो सकता है। लोग अपना एनरोलमेंट इस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पोर्टल में जाके भी कर सकते हैं, जिससे उनको हमारा वोटिंग के लिए हेल्प मिल सकते हैं। ये सब एडवांटेजेस हैं जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर्स में यूज कर सकते हैं। तो चलिए हमें इसको आपको थोड़ा एक अच्छा सा वीडियो दिखाता हूँ, जिसके ज़रिए आपको पता चल सके कि ई गवर्नेंस के क्या क्या फंडामेंटल्स चीज़ हैं जिसके ज़रिए ई गवर्नेंस काम करता है। चलिए देखते हैं ये वीडियो। थैंक यू।